OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your math class. I'm your math teacher. In the last lecture of the vectors, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और उस पे क्वेश्चंस भी किए थे. टुडे वी आर टेकिंग सम मोर एग्जांपल ऑन द वेक्टर्स स्पेशली फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ यूनिट वेक्टर in xy plane if it makes an angle of 30 degree with positive direction of x-axis. तो एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, तो 3D नहीं लेना है आपको, सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. if a vector makes an angle of 30 degree with the positive direction of x axis, so it will make 60 degree with y axis. So what will be the unit vector? So let a be the unit vector. So therefore a is equal to, what will you write? Cos alpha I cap plus cos beta j cap. No need to write cos gamma k cap क्योंकि xy plane में बात हो रही है. तो cos 30 डिग्री into I cap plus cos 60 डिग्री into j cap. तो cos 30 it's a root 3 by 2 I cap, cos 60 डिग्री 1 by 2 j cap. This is the answer. एक और तरीके से हो सकता था, it is given कि इट इज अ यूनिट वेक्टर. तो आपको ये तो पता है cos 30 आई कंपोनेंट ऑफ आई कैप क्या हो गया, cos 30 डिग्री. तो cos 30 डिग्री इज रूट 3 by 2. तो लेट वेक्टर हमने ऐसे कह दिया, लेट वेक्टर इज cos 30 डिग्री आई कैप प्लस एम जे कैप. तो cos 30 it's a root 3 by 2 I cap plus mj cap. We have to find the value of m. It's a unit vector. तो क्या कहेंगे, modulus of a is 1. Therefore root of root 3 by 2 square plus m square is 1. तो it's a 3 by 4 plus m square is equal to 1. तो m square is 1 by 4, m is half. Therefore, put the value of m, you will get the vector A. A is root 3 by 2 I cap plus m j cap. M is half j cap. And this is the answer. तो concept वही है जो अभी तक पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आसान सा टॉपिक है. चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ I cap plus j cap plus k cap 2i cap plus 5j cap, 3i cap plus 2j cap minus 3k cap and I cap minus 6j cap minus k cap are the position vectors of the point A, B, C and D respectively. Then find the angle between the vectors AB and CD. Deduce that AB and CD are collinear. So there are two parts. Actually एक ही पार्ट है. जैसे ही आप एंगल निकालेंगे तुरंत आप कंक्लूड कर पाएंगे कि कोलिनियर है या नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वेक्टर AB. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B, दिस इज B एंड दिस इज A. सब्ट्रैक्ट कीजिए 2i माइनस I कैप, 5j माइनस j 4j कैप एंड दिस इज माइनस k कैप. वेक्टर CD, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C. Position vector of D minus position vector of C. I cap minus 3i cap minus 2i cap. And this is minus 8j cap. And this is plus 2k cap. Now, ये हमारे पास AB and CD आ गए. तो we have to find angle between AB and CD. We can use any of the rule, either cross method or dot product.
क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दोनों से कर रहे हैं। मेथड वन, फर्स्ट वी आर अप्लाइंग डॉट प्रोडक्ट, तो फाइंड ए बी डॉट सी डी। ए बी डॉट सी डी इज mod of AB mod of CD cos theta। AB डॉट सी डी, ए बी की वैल्यू है, सी डी की वैल्यू है, डॉट प्रोडक्ट कीजिए। आई कैप प्लस 4j कैप, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप डॉट माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू मॉडुलस ए बी। मॉडुलस आपको निकालने आता है रूट ओवर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इंटू मॉडुलस सी डी रूट ओवर माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा ही तो हमें पता करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे, याद होगा, आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, no need to take the product of I cap and J cap, I cap and K cap. Dot product may only take the product of I cap and I cap. Similarly, J cap and J cap and K cap and K cap. Coefficient का multiply करके ऐड कर दीजिए। 1 into minus 2 minus 2, 4 into minus 8 minus 32, minus 1 into 2 minus 2, and this is 16, 17, 18. 2 under root A into under root B. Can we write under root AB? No need to write 2 under roots. तो इनटू एक ही अंडर रूट में लिख रहे हैं। दिस इज 64 एंड 4 68 एंड 8 72 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -2 -32 -2 -36 अपॉन रूट ओवर 18 इंटू 72। कैन वी राइट 18 इंटू 4 72 को, तो 2 18 से अंडर रूट से बाहर एक 18 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो -36 18 2 -1 cos theta is -1, it means theta is pi। theta is not 0, theta is pi, तो थीटा पाई आया। अगर आप इंस्टेड ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर दे तो आपके पास साइन थीटा 0 आएगा। वेरीफाई कर दे रहे हैं अभी, और साइन थीटा 0 आते ही हम ये नहीं बता पाएंगे कि थीटा 0 है या थीटा पाई है। तो हियर वी आर एबल टू से थीटा इज पाई, देयरफॉर ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर वेक्टर। तो आप साइन थीटा यानी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ए बी क्रॉस सी डी का मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ए बी मॉडुलस सी डी इंटू साइन थीटा। तो फर्स्ट फाइंड ए बी क्रॉस सी डी यूजिंग डिटरमिनेंट। तो आई कैप हम निकाल रहे हैं ए बी क्रॉस सी डी, आई कैप जे कैप के कैप, कोफिशिएंट्स ऑफ ए बी 1 4 -1, कोफिशिएंट ऑफ सी डी -2 -8 2। एक्सपेंड कीजिए आई कैप 8 -8, दिस इज 0। अगेन चेक कीजिए 8 3 बार माइनस आएगा तो -8 0, माइनस जे कैप 2, दिस इज 2 एंड दिस इज अगेन 2 -2 0, प्लस के कैप 8 -8 प्लस 8, इट इज अगेन 0। तो ए बी क्रॉस सी डी 0 आ गया। 0 मॉडुलस तो वही आएगा, यहां पे मॉडुलस निकाला है रूट 18 इसका रूट 72 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 आ गई। साइन थीटा 0 है तो थीटा में भी 0 और पाई। बट यहां पे अगर सिर्फ हमें ये दिखाना है कि कोलिनियर है या नहीं, यस इन बोथ केसेस दे आर कोलिनियर, चाहे थीटा 0 हो चाहे थीटा पाई हो। लेकिन अदर देन मान लीजिए सपोज कीजिए साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ जाती, तो यू आर नॉट एबल टू से कि थीटा एक्यूट रहा होगा या ऑब्ट्यूज रहा होगा। हम थीटा 30 डिग्री भी कह सकते हैं π/6, या 150 डिग्री 5π/6 भी कह सकते हैं। बट कॉस थीटा अगर एक्यूट रहा होता तो कॉस थीटा पॉजिटिव आता,
और ऑब्ट्यूज रहा होता तो cos थीटा नेगेटिव आता। तो यूज cos डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो। अच्छा, देयर इज वन मोर मेथड कि हमें यहां ही से दिख गया, सबसे आसान तरीका ये था। तो यहां देखिए आपको ए बी और सी डी में लाइक टर्म के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, 1:-2, 4:-8 मींस अगेन 1:-2, दिस इज अगेन -1:-2। तो सी डी वेक्टर क्या दिया है, -2i -8j + 2k कैप। इफ वी टेक -2 कॉमन, i कैप + 4j कैप -k कैप विच इज वेक्टर ए बी। तो एज वी नो, अगर a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b आ रहा है तो a एंड b आर पैरेलल या कोलिनियर, कुछ भी कह सकते हैं। तो सी डी इज लैम्डा, लैम्डा इज -2 टाइम्स ए बी, देयरफॉर ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये कॉन्सेप्ट है कोलिनियर दिखाने का कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ एंगल इज आस्किंग ओनली, कोलिनियरिटी की बात नहीं हो रही है, तो आप या तो डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज कीजिए, बट इट इज बेटर कि यूज डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहां से एंगल एक्यूट है ऑब्ट्यूज है डिस्टिंग्विश हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। ए कैसे गिवन है, बी कैसे गिवन है। तो वी डिस्कस इफ यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, इट्स अ वेक्टर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर हम लोग ने डिस्कस किया था, ए क्रॉस बी इज मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी और एन कैप पैरेलली तो हुए, बिकॉज दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसको लैम्डा की तरह ट्रीट करें, ए क्रॉस बी इक्वल टू लैम्डा एन कैप। इट मींस ए क्रॉस बी एंड एन कैप आर परपेंडिकुलर, आर पैरेलल वेक्टर्स। तो एन कैप को परपेंडिकुलर बोल रहे हैं ए और बी पर, तो ए क्रॉस बी इज अगेन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो जब भी हमें किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट यू विल राइट डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो इज 1 -2 -6, थर्ड रो 2 6 -1। आई कैप ये रो और कॉलम हाइट कीजिए, +2 + 36, 2 + 36। नाउ माइनस जे कैप यू विल राइट, ये कॉलम एंड रो हाइट कीजिए, -1 + 12, -1 + 12 एंड प्लस के कैप, रो और कॉलम हाइट कीजिए 6 + 4। तो दिस इज 38 आई कैप, 12 - 1 11 j cap and 10 k cap. This is the A cross B. A cross B is perpendicular to A and B both. बट हमें चाहिए कैसा वेक्टर, A और B पे परपेंडिकुलर हो, इट इज यूनिट वेक्टर ऑल्सो। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A and B। तो एन कैप से दिखा रहे हैं, एन कैप इज प्लस माइनस साइन वी कैन यूज बिकॉज किसी प्लेन के परपेंडिकुलर दो यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। सपोज ये एक प्लेन है, एक यूनिट वेक्टर आपके परपेंडिकुलर ऐसे बन सकता है और एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन के ऐसे भी बन सकता है। तो प्लस माइनस साइन वी कैन यूज। तो प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी है, मॉडुलस निकालने आपको आता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये यहीं पे हम छोड़ दे रहे हैं, आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। अंडर रूट x² + y² + z², 38² प्लस -11² + 10²। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए इन ए क्रॉस बी प्लस माइनस साइन। दिस गिव्स द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो आई होप आपको कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है एंड सी वेक्टर गिवन है। फाइंड फोर्थ वेक्टर डी व्हिच इज सच दैट डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। यूनिट वेक्टर नहीं बोला है आपकी बार कह रहा है डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी।
मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें कंडीशन दी है C डॉट D इज 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट D वेक्टर को हम कह रहे हैं लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B। ओनली A क्रॉस B भी नहीं कहेंगे, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। आपने एक फिक्स मैग्नीट्यूड, अगर आपने D को खाली A क्रॉस B कहा तो एक फिक्स मैग्नीट्यूड आपने दे दिया उसे, जो भी इसका A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आएगा। इट मे बी कि C डॉट D 15 दे या ना दे, हो सकता है C डॉट D 15 दे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है C डॉट D 15 ना दे तो लैम्डा उसके करस्पॉन्डिंग निकल आएगा। तो D इज लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B, तो लैम्डा इंटू A क्रॉस B I कैप J कैप K कैप। फर्स्ट रो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो आपने I कैप J कैप K कैप लिखा, सेकंड रो 1 4 2, नेक्स्ट रो 3 minus 2 7, लैम्डा इंटू एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो I कैप, ये कॉलम एंड रो हाइड किया, 28 प्लस 4 32 माइनस J कैप, 7 minus 6, this is 7 minus 6 which is 1 plus K कैप, रो एंड कॉलम हाइड किया, -2 minus 12 minus 14। अगेन चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, ये रो और कॉलम हाइड किया, 4 7 या 28, 28 प्लस 4 32, ये हाइड किया, 7 minus 6 1, ये हाइड किया, -2 minus 12 minus 14। तो दिस इज लैम्डा टाइम्स 32 I कैप माइनस J कैप माइनस 14 K कैप। दिस इज द D। एक्चुअली लैम्डा जब तक नहीं पता है आपको D अननोन है। सिंस C डॉट D कितना गिवन है 15, तो C और D का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो C इज व्हाट इज C वेक्टर 2 I कैप माइनस J कैप प्लस 4 K कैप। लैम्डा यू कैन राइट बिफोर ऑफ द एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर से पहले भी लिख सकते हैं किसी स्केलर को। तो D डॉट D इज 32 लैम्डा 32 I कैप माइनस J कैप माइनस 14 K कैप इक्वल टू 15। अब डॉट प्रोडक्ट आता है आपको 2 इंटू 32 64, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 4 इंटू माइनस 14 माइनस 56, 64 165 minus 56, it's a 9, तो 9 lambda is 15, lambda is 15 by 9, can be cancelled by 3, lambda is 5 by 3। therefore vector D is lambda की वैल्यू पुट कर दीजिए in 1, say this is 1, तो 5 by 3, this is 5 by 3, 32 I कैप माइनस J कैप माइनस 14 K कैप, या 5 अंदर इंटू कर दीजिए या यहीं रहने दीजिए, 32 5 जा 160 I कैप माइनस 5 J कैप माइनस 70 K कैप अपॉन 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होती हैं ये हमारे वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स। तो ये था आपकी कुछ एग्जाम्पल फ्रॉम मिसलेनियस। इन द नेक्स्ट क्लास विच इज नॉट इन योर सिलेबस बट हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मींस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।